into the different components of the business. Take, for example, if in the organization people are more technical, more strong, more professional, more experienced, more specialized, and more academically strong, then we in the organization can develop a strategy. So that kind of strategy will be called as people-centric strategy. So what is the people-centric strategy? The process performed within the organization which requires human interactions at its pinnacle, as its principle. So as I told you, the people-centric strategy means strategy related to the people, either the employees, either the customers. Fundamentally, the people-centric approach is positive because it leads to innovative design that helps people. Ultimately, people are the backbone of the organization. Either they are customers or they are company employees. It acknowledges that human beings hold the solutions to their own problems. Ultimately, once people are facing problem, most of the time they know how to solve it, and that people are at the heart and the soul of every single business or organization. क्योंकि बिजनेस तो कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, किसी फैक्ट्री का, किसी बिल्डिंग का, किसी उसका नाम नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट पीपल. So people make the organization successful. So people are important. So in that case, if organizations develop strategy, so that should be related to the people, and that's why it's known as the people-centric strategy. So in the 21st century of globalization, entrepreneur who can influence, motivate, and bring people together are the ones who will outpace their competitors. If you in if you have in your organization people more competent, more creative, more innovative, more professional, more professionally strong, more experts, so ultimately they can influence, persuade, convince, motivate people, customers, and they can also bring people together once they can handle their competitors very well. And people-centric strategy, the process performed with the organization that requires, okay, so the same is here, link your customer to employee satisfaction. So successful organizations should first satisfy its employees before aiming for customer satisfaction. आपके तमाम employees को पता होना चाहिए कि what company really wants to achieve at the end of the day. So what are the company goals, profitable goals, productivity goals, production goals? तो उसका तमाम एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए. इधर दे आर इन एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो तमाम एम्प्लॉइज को कंपनी के, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का पता होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, then what you can do is you can invest in people training and development. You can arrange different training programs to make them understand what company wants to achieve, what are the company values, what are the company fundamentals, principles, and the strategies, and what at the top the goals are, what company wants to achieve. Employee training is very critical in people-centric business. It's encouraging employees' daily routine work to connected with the organizational strategy. जहाँ पे people dealing है, public dealing है, customer dealing है, तो वहाँ पे people-centric strategy जो है वो एक significant role play करती है. और दूसरी है प्रोसेस सेंट्रिक स्ट्रेटेजी. फॉर एग्जांपल के अगर मैं आपको दोनों को वाजे कर देता हूं कि जो एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल क्या पीपल सेंट्रिक है, उसकी स्ट्रेटेजी पीपल सेंट्रिक होगी या प्रोसेस सेंट्रिक होगी? सर पीपल. वहां पे पीपल सेंट्रिक स्ट्रेटेजी होगी. और दूसरी जानिब अगर कोई शुगर मिल है, तो शुगर मिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस शुगर मिल के अंदर जो स्ट्रेटेजी होगी वो प्रोसेस सेंट्रिक होगी या पीपल सेंट्रिक होगी? वहाँ पे सर प्रोसेस हो. प्रोसेस. टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो,
कोई भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, वहां पे प्रोसेस सेंट्रिक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाता है बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. So centers on business process themselves rather than individual elements such as documents, workflow, plant layout. अब प्लांट लेआउट हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या दूसरे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हो प्रोसेस से रिलेटेड, उनको फोकस किया जाता है. तो प्लांट लेआउट क्या है? अ प्लांट लेआउट इज एन इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन used to analyze different physical configurations for a manufacturing plant such as machines, equipments, tools. वो सब उसके अंदर आ जाएंगे. फिर क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ऑन द की प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड कंपेटिटिव एडवांटेज टू द फर्म बाय प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड वर्ड्स. यानी कि जितनी प्रोसेस के अंदर क्लैरिटी होगी प्रोडक्शन में, अगर कभी आपको शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल या जूट मिल जाने का इत्तेफाक हुआ हो या स्टील मिल जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वहां पे आपको अगर इंडस्ट्री को अडॉप्ट होता है, तो वहां पे हमने कहा लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें पीपल सेंट्रिक स्ट्रेटेजी में, और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होता है प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट में. सो इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द प्रोसेस दैट मेक अ डिफरेंस टू द कंपनी, सपोर्ट्स प्रोसेस थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. एंड ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द प्रोसेस और प्रोसेसेस, वैल्यू स्ट्रीम्स एंड द प्रोसेसेस हैव अ वेल डिफाइंड ओनरशिप. यानी कि अगर कोई प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक अपना फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो फर्नीचर में अगर आपने सिर्फ चेयर्स ही मैन्युफैक्चर करनी है, मेटल चेयर्स, तो वहां पे एक परचेज डिपार्टमेंट वो परचेज प्रोसेस को फॉलो करेगा, एक असेंबली प्रोसेस को फॉलो करेगा, एक कटिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा, एक जो है वो पेंट प्रोसेस को फॉलो करेगा. तो ये सारे प्रोसेसेस डिफरेंट हैं. तो प्रोसेस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है. तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को, जिसमें प्रोसेस को मेन वेटेज दिया जाता है, तो वो प्रोसेस सेंट्रिक स्ट्रेटेजी कहलाती है. तो आमतौर पे दो तरह की स्ट्रेटेजी हमने डिफाइन की है अपने बिजनेस मॉडल में, और बिजनेस मॉडल के मुताबिक हमारी स्ट्रेटेजी होगी, या तो वो पीपल सेंट्रिक होगी या वो प्रोसेस सेंट्रिक होगी. अभी आ जाते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. अब जो स्ट्रेटजीज हैं बिजनेस मॉडल के हवाले से, अब हम जो है वो स्ट्रेटजी मार्केटिंग से रिलेटेड जो है ना वो डिस्कस करेंगे, या सेल्स से रिलेटेड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे. तो अब ये है एंट्री स्ट्रेटजी. एंट्री स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप कैसे एक मार्केट के अंदर एंटर होंगे. जैसे कि पाकिस्तान के अंदर यूफोन, वारेद, टेलीनॉर, जोंग, ये कंपनीज हैं. आप एक नई कंपनी लेके आते हैं, तो आप किस तरीके से आप इस करंट मार्केट के अंदर एंटर होंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी. तो वो स्ट्रेटेजी जो होगी किसी भी कंपनी की, जो किसी नए बिजनेस में, नई मार्केट में, नई इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एंट्री स्ट्रेटेजी है. आप कैसे एंटर होंगे. तो एंटर होने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को जो है वो कंसिडर करना होता है. प्रमोशन के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, वो तमाम चीजें आप कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल के आप जो है वो माय गुडनेस, लाइट इज ऑफ. ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं. जस्ट वेट अ मोमेंट प्लीज. ओके, तो जब एंट्री स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग मार्केट स्ट्रेटेजी, एंट्री स्ट्रेटेजी इज the planned method of delivering goods or services to a new target market and distribution them there. यानी कि आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे या मार्केट में कैसे एंटर होंगे, तो वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है. व्हेन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग सर्विसेज, इट रेफर्स टू एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग
कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में बाहर की कंपनी आ रही है तो वो कैसे एंटर होगी, और अगर आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में आप लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पे आप कैसे एंटर होंगे। तो आपको एंट्री स्ट्रेटजी का भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने रिसर्च करना है मार्केट को, कि वहाँ पे लोग, वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो वो तमाम चीज़ें देखने के बाद इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिलेटेड, से रिलेटेड, लाइसेंसिंग से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं आपने उनको प्रॉपर रिसर्च करना है। और उसके साथ साथ फिर आपको जो वहां पे जो करंट की प्लेयर्स यानी कॉम्पिटिटर्स हैं उसको भी स्टडी करना है। जब आप आपने इस पूरा रिसर्च कर लिया, फिर अपने गोल्स जो है ना क्लियरली सेट करने हैं आपने, कि अब आप किस तरीके से मूव करेंगे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइज के थ्रू भी कर सकते हैं, वहां पे एक्विजिशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मेनी ऑप्शंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भी कर सकते हैं और अलाइन से भी कर सकते हैं। बट यू हैव टू फिगर आउट योर फाइनेंसिंग नीड्स। ये सब कुछ सामने रखते हुए आपको जो फाइनेंसिंग नीड्स है उसको सामने रखना है, कि कितना रोकड़ा पैसा चाहिए होगा कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो जब ये सारा कुछ आप प्लान कर लें तो फिर एंड पे आप अपना एक जो है वो डॉक्यूमेंट डेवलप करें अपनी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन? हमने दो बात की बिजनेस मॉडल में स्ट्रेटजी डेवलप करते हुए, एक प्रोसेस स्ट्रेटजी, एक पीपल सेंट्रिक स्ट्रेटजी। तीसरी स्ट्रेटजी में हमने एंट्री स्ट्रेटजी की बात की है। अनदर वन इज द ग्रोथ स्ट्रेटजी। चूंकि किसी भी बिजनेस की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, तो हर कंपोनेंट से अलग, ग्रो करने के लिए भी स्ट्रेटजी, पेनिट्रेट करने के लिए स्ट्रेटजी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रेटजी, प्राइस फिक्सिंग के लिए स्ट्रेटजी, और रजिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रेटजी। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग मार्केटिंग पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है। फिर उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन, तो यानी कि आप ऑलरेडी आपके पास हैं तो आप मार्केट को एक्सपेंड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 किलोमीटर में करते हो तो अब आप 40 में करना चाहो तो ये मार्केट एक्सपेंशन होगी। अगर आप एक शहर में कर रहे हो, दो शहरों में चले जाओ, दो स्टेट्स में चले जाओ, तो ये मार्केट एक्सपेंशन होगी। उसके बाद आप प्रोडक्ट एक्सपेंशन, आपके कस्टमर भी वही हैं और आप के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपने दो प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, नए प्रोडक्ट्स ले आए, तो ये प्रोडक्ट एक्सटेंशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले में है, आप पहले नेस्ले में जो है वो सिर्फ दूध बेचते थे, फिर दही भी आ गया, फिर उसके बाद योगर्ट में वो रायता भी आ गया, जीरा भी आ गया, फिर उसके बाद नेस्ले में जूस भी आ गया, नेस्ले में फ्रेश मिल्क भी आ गया, नेस्ले में बॉटल्स भी आ गई पानी की, वो फिर बड़ी बॉटल भी आ गई, छोटी भी आ गई। तो ये क्या एक्सपेंशन है? प्रोडक्ट एक्सपेंशन कहलाती है। फिर उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। टेक फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चावल बनाती है, राइस मिल या राइस फैक्ट्री है, तो उन्होंने साथ ही जो ना गत्ता फैक्ट्री खोल ली, तो ये उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया, कोई और काम शुरू कर दिया है। और फिर ऐसे ही एक्विजिशन भी हो सकता है कि अगर आपने ग्रो करना है तो किसी और कंपनी को आप अक्वायर कर लें, खरीद लें, तो उससे भी आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो सकता है। इसका ये एक नटशेल है। आपने देखना है कि व्हाट यू वांट टू अचीव। क्या आपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को इंक्रीज करना है, या आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को यूज करना है। फॉर एग्जांपल के शुरू में जब पाकिस्तान के अंदर डेवू बस सर्विस आई थी तो ये पैसेंजर्स को एक सिटी से दूसरे सिटीज तक लेके जाती थी। फिर बाद में किसी ने मशवरा दिया कि जी गाड़ी तो आप जा ही रही है आपकी, तो अब क्यों ना कार्गो का काम साथ शुरू कर ले, तो उन्होंने कार्गो का काम साथ शुरू कर लिया। तो ये उन्होंने अपने उन रिसोर्सेज को इनहेंस किया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो वहाँ पे टैक्सी सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड किया है, ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया है। तो अल्टीमेटली आपने पहले ये देखना है कि व्हाट यू रियली वांट टू अचीव। उसके बाद है जजमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो अब किस तरीके से पता चलेगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है? उससे पता चलेगा, एक तो आपको सेल्स वॉल्यूम से, दूसरा हो सकता है आउटपुट से। शुगर मिल में आउटपुट का पता चलेगा, सेलुलर इंडस्ट्री में आपको सेल्स वॉल्यूम का पता चलेगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का पता चलेगा, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड उसके इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा, या आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी से पता चलेगा कि आप ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। इफ यू राइट एट दिस मोमेंट है फॉर एग्जांपल 700 कस्टमर्स, आफ्टर 3 मंथ्स यू गॉट 800, तो अब कस्टमर इंक्रीज हुए तो आपको पता चल गया अभी ग्रो किया है हमने।
जो ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं वो दो तरह से हैं, एक इंटरनल ग्रोथ होती है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो मैंने जो ग्रोथ के मतलब इंटेंसिव और इंटरनल में जो बात करते हैं उसमें ग्रोथ, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, और एक्सटर्नल में ग्रोथ, मर्जर, अगर बाहर से कोई कंपनी खरीद लें तो उसमें मर्जर आएगा, एक्विजिशन आएगा, जॉइंट वेंचर किसी के साथ कर लें या स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लें, ये आपके एक्सटर्नल आएंगे। और आपके इंटेंसिव और इंटरनल में आपके डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन और मार्केट ग्रोथ उसके अंदर वो आएंगे। ओके, अनदर वन, मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, अब हम आ गए हैं एक नए सब्जेक्ट की तरफ, एक नए डोमेन की तरफ। हमने डिस्कस कर लिया ओवरऑल, अब है मार्केटिंग। तो मार्केट से, मार्केट कॉन्सेप्ट अलग है। मार्केट में हम कहते हैं कि इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, बंच ऑफ कस्टमर्स, बायर्स, करंट बायर्स और पोटेंशियल बायर्स। तो अब जो है वो मार्केटिंग इज, अब मार्केटिंग की तरफ आ रही है। मार्केटिंग इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन के चार फंक्शंस को कंबाइन करें तो वो मार्केटिंग कहलाती है। कौन कौन से फंक्शन? पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोडक्ट प्राइसिंग, तीसरा है प्रोडक्ट प्रमोशन, चौथा है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से मैंने बताए चार आपको? मैंने बताए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, कब बनानी है, कैसे बनानी है, किस तरह की बनानी है, कितनी बनानी है, तो वो आप डिजाइन, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और उसके बाद सेकंड में है वो है प्राइस फिक्सेशन। तो प्राइस कौन सी रखनी चाहिए, तो प्राइस की स्ट्रेटेजी पेनिट्रेशन की हो सकती है, प्राइस की स्ट्रेटेजी स्किमिंग हो सकती है, प्राइस की स्ट्रेटेजी जो है वो प्रीमियम हो सकती है, और पेनिट्रेशन। तो ये तीन चार स्ट्रेटेजीज है जो प्राइस से रिलेटेड होंगी। तीसरे नंबर पे आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, मैसेज कैसे उसका डेवलप करना है, कैसे पास करना है, किस तरह से पास करना है, तो ये सारे आपके प्रमोशन से रिलेटेड होगा। तो प्रमोशन में बाय वन गेट वन फ्री हो सकता है, प्रमोशन में आप 20% एक्स्ट्रा हो सकता है, 20% डिस्काउंट हो सकता है, ये सारी प्रमोशन से रिलेटेड है। तो दूसरे लफ्जों में कहें कि 4 P's हैं, चार फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के मिले तो उनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स उसको बोलेंगे। आप जो भी प्रोडक्ट जो है वो आपने बनाने से पहले ये देखेंगे ना कि कितने कस्टमर्स हैं जिसकी आपने टारगेटिंग की, सेगमेंटेशन की, कि जी ये यहाँ पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम इतनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इतने कस्टमर्स हैं और उसकी इतनी हम प्राइस रखेंगे, और इस तरीके से हम लोगों को बताएंगे कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है। चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजिटल प्रमोशन हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रिंटिंग से हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, न्यूज़पेपर के बाद अखबार उसमें टीवी से हो, तो वो जो भी मतलब हो वो आपके सारे 3 P में, पी जो तीसरा पी है उसमें आएंगे। फिर उसकी प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स के लोग खरीदेंगे कैसे, क्या डायरेक्ट कस्टमर के घर भेजेंगे, या कस्टमर रिटेलर से खरीदेगा, या क्या कस्टमर इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा, या कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से खरीदेगा। अब जनरेटर अगर देखें या एक्सरे मशीन्स देखें तो जो कस्टमर है वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स देखें तो लोग रिटेलर से खरीदते हैं। और अगर कोई ऐसी डिवाइसेस देखें तो लोग उसके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के या प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के। तो मैंने आपको मार्केटिंग के चार फंक्शंस में जो चीजें बताई वो क्या है? पी 4 P, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्लेसमेंट एंड पी फॉर प्रमोशन। A firm's entrepreneurial orientation has 3 dimensions। क्या उसमें एक इनोवेशन होनी चाहिए, और दूसरा रिस्क टेकिंग, और तीसरा प्रोएक्टिवनेस, एडवांस में प्री प्लान तैयार रहना। Firm's marketing orientation, on the other hand, refers to the size and consistency of its investment in marketing activities and people, and includes firm's adoption of the marketing concept। तो चार तरह के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा एवोल्यूशन की बात करूं, मार्केटिंग का एवोल्यूशन, मार्केटिंग का वर्ड कहाँ से निकला? सबसे पहले जब हमारे अब्बा हुआ करते थे तो अब्बा जी कहते थे कि
नवा 9 दिन तो पुराना 100 दिन। तो हमें ये समझ नहीं आती थी, जब फिर एमबीए किया तो फिर समझ आई कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले जो बिजनेसमैन थे वो ये सोचते थे, उनका बिलीफ ये था, उनकी अकल फहम दानिश अदराक ये उनको बताता था कि आप एक प्रोडक्ट बनाएं जो कि क्वालिटी में किसी कोई और उसको मैच ना कर सके। यानी क्वालिटी, हाई फाई क्वालिटी रखते थे वो ये समझते थे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाएं और उसकी क्वालिटी हाई फाई रखें तो लोग उस प्रोडक्ट को खुद ब खुद खरीदेंगे। और ऐसा हुआ भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक वक्त आया कि प्रोडक्ट मार्केट में ही है लेकिन लोग नहीं खरीदते। तो उन्होंने फिर सोचा कि भी वो जो टाइम पीरियड था उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। यानी प्रोडक्ट का नाम कह सकते हैं 1901 से लेके 1925-30 तक जो है ना वो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस था। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप प्रोडक्ट तो अच्छी बना ली लेकिन जब तक लोगों को सेल नहीं करेंगे, सेल्स टीम नहीं रखेंगे, जाके वो कस्टमर से मिल के बताएंगे नहीं, तो उतनी देर तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो फिर उसके लिए उन्होंने सेल्स कॉन्सेप्ट, सेल्स एक्टिविटी, सेल्स मैसेजेस बनाना शुरू कर दिए। तो वो था सेल्स कॉन्सेप्ट। पहला प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था जिसमें क्वालिटी पे बात करते हैं, दूसरा सेल्स कॉन्सेप्ट है जिसमें सेल्स करने के तरीका कार, किस तरीके से, हाउ टू स्टार्ट डिस्कशन विद द कस्टमर, हाउ टू शो योर प्रोडक्ट, हाउ यू handle the objection if comes in from the customer, and how to control or how to finalize the sales। तो उसमें वो सेल्स कॉन्सेप्ट था। जब प्रोडक्ट भी हो गया, सेल्स भी हो गया, तो फिर इसके बाद जो है उन्होंने देखा कि सेल्स करने के बाद भी लोग प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, अब सेल्स के ऊपर भी लोग जो है वो नहीं खरीद रहे, मार्केट में बल्क में सरप्लसेस स्टॉक होना शुरू हो गए। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया तीसरा, तो उसका नाम था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि आप पहले देखें, अरे उस सांबा कितने आदमी थे, यानी कितने लोग हैं जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है, फिर उसी के मुताबिक उतनी ही प्रोडक्ट बनाएं। आप देखें कि कितने कस्टमर हैं और वो क्या पे कर सकते हैं, उसी के मुताबिक उसकी प्राइस रखें। फिर आप देखें कि कितने कस्टमर हैं, किस तरह के कस्टमर हैं, बैकग्राउंड क्या है, और उसी तरह से उस प्रोडक्ट का मैसेज यानी एडवर्टाइजिंग करें। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें रिलेशनशिप के ऊपर वो बेस करता है। तो अभी मैंने 4 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए मार्केटिंग के हवाले से: प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट, marketing concept, and social social media marketing concept. Okay, so next is marketing strategies. अब इसके लिए strategies क्या हैं? Marketing strategies are the result of meticulous market analysis। यानी कि मैंने जो अभी सारी चीजें बताई हैं आपको, आपने प्रॉपर उसको एनालाइज करना है, यानी मार्केट का एनालिसिस करना है, या मार्केट एनालिसिस जो फोर्स करता है एंटरप्रेन्योर को टू बिकम फेमिलियर विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ मार्केट, ताकि वो तमाम कस्टमर तक अपनी उस प्रोडक्ट को डेवलप करके ले जा सके। फ्रॉम देयर नीड टू डिस्कवर अ प्रॉफिटेबल निश। तो उसने कहा यहां से फिर अगली बात निकलती है कि आप एक प्रॉफिटेबल निश के ऊपर भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सिर्फ खास कस्टमर्स के लिए होती हैं, लाइक टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मर्सिडीज, मर्सिडीज हर बंदा नहीं खरीदता। रोल्स रॉयस हर बंदा नहीं खरीदता, एक खास तबका है सिर्फ वही। गोल्फ हर बंदा नहीं खेलता, एक खास ग्रुप है वही खेलता है। तो ये जो खास होता है ना इसको बोल देते हैं निश। निच 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 भी बोल देते हैं, जिसमें आप अपनी मार्केट को आप सेगमेंटाइज कर लेते हो बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये छोटी मार्केट होती है, खास मार्केट होती है, प्रोडक्ट भी खास होती है, प्राइस भी खास होती है। तो ये निश की स्ट्रेटेजी भी होती है। द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस, आपका कस्टमर, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स गोल्स क्या है, तो उसी के मुताबिक बनाएंगे। और अगर सही हुई तो वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में और प्रॉफिट अर्न करने में और ज्यादा देर तक कंसिस्टेंटली मूव करने में हेल्प करेगी वो स्ट्रेटेजी। देन इसके साथ जो है वो फिर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स भी दरकार होंगे जिससे आप अपने ग्रोथ को मैनेज कर सकें।
सो अ सक्सेसफुल मार्केटियर, अगर आप अपने बिजनेस के मार्केटिंग मैनेजर है या मार्केटियर हैं, तो मार्केटियर जो है वो मतलब कंपनी की इनकम को इंक्रीज करता है। कैसे? ड्राइविंग सेल्स, यानी सेल्स को इंक्रीज करके। बिजनेस इज अ चाइल्ड, नर्चर एंड नरिश इट टू हेल्प इट ग्रो हेल्दी। तो आपने उस बिजनेस को, एक जिसको आपने समझा हुआ है कि ये आपका बेबी है, इसे खिलाएं पिलाएं, इन्वेस्टमेंट करें, उसको जाने पहचाने, और उसके मुताबिक स्ट्रेटजीज आप डेवलप करते जाइए। अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट सर्विसेज। और फिर देखें कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, या कस्टमर किस से मोटिवेट होता है। क्या प्रोडक्ट से होता है, क्या प्राइस से होता है, क्या क्वालिटी से होता है, क्या क्रेडिट से होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, क्या अवेलेबिलिटी से होता है, क्या ब्रांड नेम से होता है, या कंपनी इमेज से होता है। वो आपने पूरा एनालाइज करना है। फिर उसके बाद आपने उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के अंदर क्या होगा कि आपने डिसीजंस करने होते हैं बेसिकली किस चीज के बारे में, प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में, और फिर प्राइस क्या होगी, फिर उसके बाद प्रमोशनल चैनल्स कौन से होंगे, फिर फाइनली कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में आते हो तो फिर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो फिर आगे रिटेलर को सप्लाई करेगा, और रिटेलर जो है वो कस्टमर को देगा। अगर फॉर एग्जांपल के आप कोई ऐसी बड़ी मशीन, जहाज, या कोई वेपन्स, या कोई एक्सरे मशीन्स बना रहे हैं, जनरेटर्स बना रहे हैं, हैवी क्रेन्स बना रहे हैं, ट्रक्स बना रहे हैं, तो वहां पे आपको रिटेलर नहीं, कस्टमर डायरेक्ट जो है वो आपके साथ राब्ते में होगा, तो आप उनको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके घर पे। तो ये प्लेसिंग है। तो वो चार काम जो हैं जो कि हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं, उसके बारे में डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी बनाई जाए जिसको ऑफर करना है कस्टमर के लिए, फिर उसकी प्राइस के लिए क्या अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रमोशन के लिए चैनल जो है वो कौन कौन सा रखना चाहिए। क्या फेसबुक पे जाएंगे आप, क्या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, टीवी पे जाएंगे, क्या प्रिंट मीडिया पे जाएंगे, वो आप डिसाइड करते हैं। ओके, एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब इन 101 एंडेवर्स इन 102 सक्सेस। इसको हम छोड़ देते हैं मैसेज को। बी क्रिएटिव थिंकर, डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। हाँ, ये है कि बिगिनिंग हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। तब्दीली। हमने बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, फिर उसके लिए स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की बात की। दो हमने स्ट्रेटजीज मेनली डिवाइड की, एक पीपल ओरिएंटेड या पीपल सेंट्रिक या पीपल डायरेक्टेड, दूसरी प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोसेस डायरेक्टेड बेस्ड ऑन द क्वालिटी। फिर हमने डिस्कस किया डिफरेंट स्ट्रेटजीज को। एंट्री स्ट्रेटजीज में हमने डिस्कस किया, फिर हमने ग्रोथ स्ट्रेटजीज की बात की। तो अभी हम जो है वो चले गए हैं यूनिट नंबर 5 में। अब चूंकि आप काम शुरू करेंगे, अब आपने क्या करना है, तो अपने प्लानिंग जो है वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्कशन के बाद लिख के अब सारा कुछ करना है आपने। चूंकि आपने इनिशियल लेवल का काम सारा कर लिया है, अब आप प्लानिंग प्रोसेस में हैं। अब आप जो है वो जो एनालिसिस किया, जो लोगों को आपने डिस्कस किया, जो आपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया, जो एनवायरनमेंट को आपने एनालाइज किया, ये इज रिटन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया? और ये रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। हो एक्चुअली ये स्लाइड्स जो है ना वो मैंने नहीं बनाई हुई, तो इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो उसको माइंड ना करिएगा। ओके, तो ये बिजनेस प्लान का डॉक्यूमेंट जो है ये एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन खुद बनाता है, जो कि डिस्क्राइब करता है क्या कि इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या हैं। यानी कि वेंडर्स कहाँ से होंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लोन कहाँ से आएगा, और उसके बाद मशीन कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से, ये सारे इंटरनल या एक्सटर्नल, कस्टमर कौन होंगे, तो वो सारे एक्सटर्नल में आप चेक करते हैं। तो ये इंटरनल और कस्टम इंटरनल दोनों को बताता है, यानी उस बिजनेस प्लान में वो तमाम चीजें लिखी होती हैं। तो आपको इन सब चीजों को सामने रखते हुए अपना बिजनेस प्लान का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है। तो ये पूरा एक बेसिकली प्रोसेस है जिसको बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस बेसिकली ये इंटीग्रेटेड होता है किस चीज का, फंक्शनल प्लान्स का। यानी कि मार्केटिंग भी इसके अंदर बिजनेस प्लान में डिटेल में बताया गया होगा, फाइनेंस के बारे में डिटेल में बताया गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग
भी बताया गया होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान भी बताया गया होगा कि पहले में 6 महीनों में कितने लोग हायर करेंगे, फिर उसके बाद साल बाद कितने होंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपने सारा कुछ लिखा होता है। फाइनेंस, पहला खर्चा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, फिर कैश फ्लो क्या होगा, प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, पहले महीने कितनी सेल होगी, वो तमाम चीजें जो है आपने इस डॉक्यूमेंट में लिखनी होती है, जिसको आपने एनालाइज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद बनाया होता है। सो अ बिजनेस प्लान इज अ ब्लू प्रिंट, इसको ब्लू प्रिंट भी बोलते हैं या इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि फॉलो करता है टू कन्वर्ट बिजनेस आइडिया, यानी कि बिजनेस प्लान जो है वो बिजनेस आइडिया को एक बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट करने का एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? बिजनेस प्लान एक बिजनेस आइडिया को बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। ओके, चलो हम चलें। ओके, तो आपको जो है वो अपने बिजनेस प्लान प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपने जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस प्लान, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस बिजनेस की इम्पोर्टेंस को, उस प्रोसेस की, प्लान की इम्पोर्टेंस को समझना, क्योंकि वो पूरा एक ब्लू बुक होती है किसी भी बिजनेस के बारे में। तो उसमें वो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, फिर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेसेस देखते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं वो देखते हैं। फिर उसके बाद फिर आप सजेस्ट करते हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट बनाई जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कितनी उसकी प्राइस रखी जाए, फिर उसके बाद इस तरीके से उसकी प्रमोशन होगी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो पहले महीने में कितना टारगेट, दूसरे में कितना, आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बिजनेस प्लान के डॉक्यूमेंट में होगी। और बिजनेस प्लान जो है इससे आपको कंपनी की डायरेक्शन का पता चलेगा कि कंपनी किधर जा रही है, क्या अचीव करना चाह रही है। टू ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट द प्रोस्पेक्टस, अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस है उस को हम प्रॉपरली उस डॉक्यूमेंट से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फोरकास्ट भी बताई होगी, पहले साल का बिजनेस, दूसरे साल का बिजनेस, तीसरे साल का बिजनेस। और ये सारा कुछ रिसर्च करने के बाद डेवलप किया जाता है। और इसमें मोर देन 85% अगर आप श्योर होते हैं तो फिर उसको हम सक्सेसफुल मानते हैं। अगर आप लेस देन 80% श्योर होंगे तो फिर उसके ऊपर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, उस बिजनेस के ऊपर। और बिजनेस प्लान में आपको पता चलता है कि हाउ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, पता चलेगा मंथ्स वाइज सेल, वीक वाइज सेल, और क्वार्टरली सेल्स, बाई एनुअली सेल्स, एनुअली सेल्स, आपको उससे रेवेन्यू से पता चलेगा, मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन वो बिजनेस प्लान होगा तो उसमें लिखा होगा तो पता चलेगा। और दूसरा ही इसका बिजनेस प्लान का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आपको पता चले कि हाउ टू परसुएड अदर्स टू ज्वाइन बिजनेस, टू बाई योर बिजनेस, बाई योर प्रोडक्ट। या फिर बिजनेस प्लान बनाते हैं, आपको ये हेल्प करता है, आप जब किसी कंपनी से, बैंक से लोन लेना हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना हो, तो अगर आपने वो एलिवेटर पिच देखी है तो एलिवेटर पिच होती इसलिए है, उसके बाद बिजनेस प्लान का डॉक्यूमेंट आता है कि जो आप किसी के सामने प्रेजेंट करके अपना बिजनेस प्लान, उससे इन्वेस्टमेंट या लोन सीख करते हो। एंड टू विजुअलाइज कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट वायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपको बिजनेस प्लान से जो है ना ये सब चीजों का पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, कितने पैसे चाहिए होंगे, ब्रेक इवन कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद आएगा, और कितने कस्टमर्स के बाद आएगा, या कितने रेवेन्यू के बाद आएगा। ये आपको बिजनेस प्लान से पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद होती हैं। ओके, टू गाइड एंटरप्रेन्योर इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, तो इस बिजनेस प्लान से भी आप जो है ना खुद भी फिर डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आप गाइड होंगे उसमें। उसके बाद टू बिजनेस प्लान का और भी फायदा ये होता है कि इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द बिजनेस। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये जो
हमारा बिजनेस प्लान है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं होगा, ये तो पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट होगा। अगर हम सीक्रेट किसी होता है। कंपनी से हाँ, ये सीक्रेट ही होता है, सबको नहीं आप बताते, हर किसी को नहीं सर। बताते। लेकिन अगर आपने किसी बैंक से लोन लेना है या किसी इन्वेस्टर से लोन लेना है, उसको तो जाके आप बताएंगे ना कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसे बिजनेस होगा, इतना पैसा चाहिए होगा, इतने महीनों के बाद ब्रेक इवन आ जाएगा, इतने सालों के बाद इसका जो है वो इसका पे बैक हो जाएगा, सारे पैसे आ जाएंगे वापस। तो ये बिजनेस प्लान से ही आपको इन चीजों को इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है। जी। ओके, सो द नेक्स्ट इज दूसरा और क्या मतलब इसका बिजनेस प्लान के डॉक्यूमेंट का फायदा होगा। सो दिस बिजनेस प्लान जो डॉक्यूमेंट है ना, हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस, जो कि आपने स्टडी करने के बाद बनाया होता है। और ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का भी पता चलता है। जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं बेसिकली एक्सटर्नल होते हैं, और जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वो इंटरनल होती हैं। सो टू क्लैरिफाई आइडियाज एंड आइडेंटिफाई गैप्स इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो आपको आइडिया को भी क्लैरिफाई करने में और गैप को आइडेंटिफाई करने में आपको बिजनेस प्लान जो है वो हेल्प करता है टू कम टू द कंक्लूजन। टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, आपको यहां से पता चलेगा कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, किस तरह के चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे। एंड द डॉक्यूमेंट ओनरशिप एग्रीमेंट, और इसके बाद फिर आप ओनरशिप एग्रीमेंट या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है या प्रोजेक्ट ग्रोथ के ऊपर या बिजनेस वेंचर के ऊपर जो है वो आप डॉक्यूमेंट बना देते हैं, जिससे एग्रीमेंट कर लेते हैं अगर किसी से आपने लोन लेना होगा। तो इस प्रोसेस में ये 5 चीजें हैं। पहली है आइडिया जनरेशन। जब आप किसी का बिजनेस प्लान को प्रोसेस करना होता है तो उसमें पहला आइडिया जनरेशन आप करते हैं। उसके तरीकाकार मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। एंड द सेकंड इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, आप एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं पूरा। एनवायरमेंटल एनालिसिस जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, जिसमें एजुकेशन चेक करते हैं, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट, सोशल कंडीशंस चेक करते हैं, इकोनॉमिक रोल चेक करते हैं। यानी वो तमाम जो है वो आप मतलब पहले उसको चेक करते हैं। तो आइडिया जनरेशन, उसके बाद एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ये मैंने अभी आपको रिसेंट जो बताया वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए है। यानी एनालाइज करना एनवायरमेंट को, कितने कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितने दिनों में अवेलेबल होगी, कितने दिनों में रॉ मटेरियल आएगा। तो ये सारा जो है वो मतलब आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन एनवायरमेंट में आप फॉलो करते हैं SWOT, या आप करते हैं पेस्टल को, यानी पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल सिचुएशंस, और ऐसे ही सोशल टेक्नोलॉजिकल, ये तमाम चीजें आप करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर। अगला है आपका वो फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिर उसके बाद आप डेवलप करते हैं कि क्या ये काम डुएबल है, कोई मॉडल बना के देखते हैं क्या ये प्रॉफिटेबल भी होगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो आप कह सकते हैं इसके साथ 2 चीजें, एक स्वॉट एनालिसिस और एक पेस्टल एनालिसिस। फिर उसके बाद आप जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको फिर इवेल्युएट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और फिर दोबारा से रिव्यू करते हैं। तो बिजनेस प्लान प्रोसेस के ये 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं। ओके, लेट। तो बिजनेस प्लान जो है ना, ये अगेन उसकी डिटेल्स बताई हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो बिजनेस प्लान, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या होते हैं और उसके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं। सो माइट क्रिएट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस साइज, या जो आपका बिजनेस प्लान होगा वो बिजनेस के साइज और गोल के ऊपर डिपेंड करता है। तुम जर सो बिजनेस प्लान, मैंने कहा कि वो बिजनेस के साइज और बिजनेस के गोल पर डिपेंड करेगा। इसको मैं ये डबल क्लिक करूं, बिजनेस गोल। उसके बाद है बिजनेस प्लान्स। ये डिस्कस हमने किया कि ये ओनर को गाइड करता है, इन्वेस्टर को हेल्प करता है ताकि वो अपना स्टार्टअप ग्रो करने के लिए स्टार्ट कर सके।
अब बिजनेस ओनर राइट्स अ बिजनेस प्लान, किस लिए? टू क्लैरिफाई ईच एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस प्लान इंक्लूड्स, उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, एंटिसिपेशन फॉर द फ्यूचर होगी। और टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान में लिमिटेड टू स्टार्टअप प्लान हो सकता है, इंटरनल बिजनेस प्लान हो सकता है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है, फिजिबिलिटी वाला हो सकता है। तो ये डिफरेंट इसको नाम देते हैं कि जी ये वाला बिजनेस प्लान इससे रिलेटेड है। तो पहला हम कहते हैं स्टार्टअप बिजनेस प्लान क्या होता है। जो स्टार्टअप बिजनेस प्लान होता है ना, ये ज्यादा वो होता है डिटेल्ड वर्जन में, चूंकि ये नया बिजनेस करना होता है इसलिए। सो द डिटेल द स्टार्टअप बिजनेस प्लान जो है ना, वो एक्सप्लेन करता है स्टेप्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विद द स्टार्टअप बिजनेस प्लान। स्टार्टअप से पता चल रहा है कि ये नया बिजनेस है जो स्टार्ट होने जा रहा है। और इसके अंदर क्या कुछ होगा, सेक्शंस कौन से होंगे? तो सेक्शंस जो हैं वो बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ को, प्रोडक्ट क्या होगी, सर्विस क्या है, और बिजनेस जो सप्लाई करेगा मार्केट के अंदर, और फिर उसकी इवैल्यूएशंस, और फिर उसके साथ साथ प्रोजेक्टेड मैनेजमेंट टीम। तो बिजनेस प्लान में ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको यहाँ प्लान के कंटेंट्स होते हैं, ये बेसिकली एक फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज के लिए बिजनेस, उसकी ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, फिर उसका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। अगर मैं ये सारी चीज़ों को ले जा करके यहाँ पे आपको दिखाता जाऊँ, तो ये सऊदीया में एक ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान था। ठीक है, उसमें ये बैकग्राउंड दिया हमने कि ज़रूरत क्यों है इसकी। फिर उसके बाद हमने बिजनेस प्लान प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। उसमें एग्जेक्टिव समरी का मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है उसको समराइज करके यहाँ पे लिख दिया। फिर अब यहाँ से स्टार्ट किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि इसकी ज़रूरत क्यों है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी। फिर आपने अपना उसको कन्वर्ट कर दिया बिजनेस में कि जी हमें इससे जो है ना इतना इन्वेस्ट करें अगर, तो इतना हमें इसका प्रॉफिट हो सकता है। तो फिर ये इस कंपनी का विजन मिशन होगा लेवरेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। और उसके बाद रिसर्च स्ट्रेटजी आपने कैसे की थी वो सब आपने प्राइमरी और सेकेंडरी की डिटेल यहाँ पे बताई है। और फिर उसके बाद में फिर आपने स्ट्रेटजी बनाई कि आप किस तरह से करेंगे जो शॉर्ट टर्म में, कि जी हम इस ट्रेनिंग में जो सर्टिफिकेट लेवल 4 कोर्स अनाउंस करेंगे, लॉन्च करेंगे, ट्रेनिंग कंपनी बना रहे हैं, और यहाँ पे डिप्लोमा लेवल होगा, यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के शॉर्ट कोर्सेज और आईएलटीएस की क्लासें होंगी। फिर हमने क्या किया, हमने फिर इसका बिजनेस मॉडल बनाया। बिजनेस मॉडल बना के हमने यहाँ पे जर्नास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा। और फिर उसके बाद हमने इसका लिखा कि प्रोजेक्टेड रेवेन्यू यानी कितने पैसे आएंगे, वो डिटेल सारी इसकी लिख दी। पहले साल में आप $1.5 लाख, दूसरे में $2,60,000 अर्न करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसका मार्केटिंग प्लान इस तरीके से होगा। और फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने ये रखी। फिर उसमें ये है कि कैश से, बैंक ट्रांसफर से, क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट लेंगे। फिर ऑपरेशन उसके कैसे होंगे, ये हमने ऑर्गेनोग्राम बना दिया था। ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, नीचे ये वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होंगे। फिर उसके बाद किसकी क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करेगा, ऑपरेशनल मैनेजर क्या करेगा, ट्रेनर, फाइनेंस, ये सारे लोग क्या करेंगे। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट मॉडल बनाया इसका, कि हमने कहा पे 6 बंदे रखने हैं, ये उसकी कॉस्ट होगी, एनुअल इतनी होगी। ये टोटल कर दिया तो 2,53,200 टोटल कॉस्ट होगी, ये भी मिलाई तो 2,60,000 हो जाएगी। और फिर ये नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि वन टाइम होने हैं, वो डिटेल उनकी लिख दी। फिर यहाँ पे हमने रेवेन्यू का मॉडल बना दिया कि सर्टिफिकेट कोर्स से 10 स्टूडेंट्स लेंगे पहले क्वार्टर में, जनवरी से मार्च में, और उसका 5,000 उसकी हम जो है वो फी रखेंगे। तो ऐसे ही फिर 10 करते करते ये पूरे साल का तीनों का, इसमें बिजनेस, अकाउंटिंग और आईसीटी का है। और बनाने के बाद फिर हमने टोटल किया कि टोटल हमारा रेवेन्यू 20,000 होगा। 20,000 60,000 हमारा रेवेन्यू होगा, और 30,000 इसका होगा। तो फिर यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू जनरेट कर दिया 60 + 60 + 30 150,000, 1 ईयर 2 ईयर 3। तो ये उसके बाद हमने इसका स्वॉट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी सारी वो डिस्कस की हैं। तो फिर उसके बाद हमने इसकी एक पिच डेक बनाई। पिच डेक में हमने ये सारी डिटेल लिख दी कि मार्केट का गैप क्या है, अपॉर्चुनिटी बिजनेस करने की है, मॉडल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, सपोर्ट क्या चाहिए। मार्केट गैप की हमने डिटेल लिख दी यहाँ पे।
उसके बाद बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे चीज बता दिया हमने। फिर हमने उससे कहा ये वाला मॉडल हमारा होगा बिजनेस मॉडल। और बिजनेस मॉडल के बाद फिर हमने कहा कि इतनी इसका रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए और इतना इसका रेवेन्यू जनरेट होगा। और उसके बाद डिटेल बता दी हमने स्लाइड के अंदर कि इतना पहले दूसरे तीसरे साल में होगा। और ये सारी कॉस्ट इतनी लगा दी हमने। कॉस्ट लगाने दिखाने के बाद हम कहते हैं जी हाँ जी हम पैसे करो। स्प्रेडशीट, फाइनेंशियल स्प्रेडशीट वो भी बता दी। अगर मैं आपको स्प्रेडशीट भी दिखा दूं, यहाँ पे बिजनेस प्लान में कोई एक्सेल की बिजनेस प्लान इसमें शायद हो, ये वाली फाइनेंशियल प्लान्स। ओके, तो आप फिर उसमें इसको मैंने तो आपको उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर भी दिखाया, तो यहाँ पे आप इसको इसके अंदर भी दिखा देते हैं। इसको पहले को बोलते हैं अजम्पशन शीट, कि ये एक बटरफ्लाई का बिजनेस था कि इसमें हमने कहा कि कितने विजिटर्स आएंगे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, फिर उसके बाद सैलरी सारी एक्सपेंसेस सारे क्या होंगे, एडवर्टाइजिंग के क्या खर्चे होंगे, यूटिलिटी बिल्स पर मंथ क्या होंगे, वो सारा डिटेल करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की वो आ जाती है ऑटोमेटिकली जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर कैश फ्लो कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, फिर पे बैक पीरियड, फिर उसके बाद सेकंड ईयर, फिर इस तरीके से थर्ड ईयर, फिर IRR, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 30% जो है ना आपका उसके ऊपर इनकम होगी। तो ये वाला आप एक्सेल शीट में स्प्रेड शीट जिसको बोलते हैं वो आप बना के दिखा सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट है, कैश फ्लो है, उसकी प्रोजेक्शन है, इनकम की प्रोजेक्शन है, वो सब चीज़ें आप उसके अंदर बताते हैं। ओके, अब इंटरनल बिजनेस प्लान जो है, बेसिकली जो इंटरनल बिजनेस प्लान है वो टारगेट करते हैं हम ऑडियंस को, कितने कस्टमर जो हैं वो होंगे, और डायरेक्ट कस्टमर, इनडायरेक्ट कस्टमर, वो कस्टमर क्या जो बारे में बनाएंगे वो आपका इंटरनल बिजनेस प्लान कहलाएगा। यानी कि पूरे ओवरऑल बिजनेस के प्लान के अलावा अब एक और बिजनेस प्लान होगा जो कि प्योरली कस्टमर से रिलेटेड होगा, तो जिसमें आप अपना इवेल्युएट करेंगे कि वो प्रपोज प्रोजेक्ट को कस्टमर के हवाले से कि करंट स्टेट में क्या है, फिर उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी, प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आप कैलकुलेट करेंगे भी इतने कस्टमर अगर हमें मिल जाएं तो, और इतनी प्रोडक्ट्स हमारी बिक जाएं तो इतना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद होता है आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान। ये बेसिकली बिजनेस प्लान के अंदर छोटे छोटे बिजनेस प्लान हैं, यूं कह लें आप। जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान है वो बेसिकली कंपनी के जो गोल हैं उसका एक डिटेल्ड मैप होता है, जैसे वो उन्होंने अचीव करना है। जैसे यानी कि कोर्सेज मैंने जो ट्रेनिंग कंपनी का बताया, उन्होंने कहा जी हम डिप्लोमा कोर्स करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम सर्टिफिकेट कोर्स करके और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज करके। तो ये बेसिकली उसका वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड होता है, यानी कि ये वो एक्शंस हैं जिसको आप करते हुए, एक्शंस लेते हुए आप अपना गोल अचीव करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जो मैंने लास्ट वीक में आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रेटजी से रिलेटेड। यानी कि ग्रुप ऑफ एक्शंस व्हाट यू विल इनकॉर्पोरेट टू अचीव योर गोल्स। मैंने कहा था स्ट्रेटजी क्या होती है, ग्रुप ऑफ एक्शंस। अच्छा, उसके बाद ये एक वेबसाइट है जिसको क्लीन वाशिंगटन सेंटर है, इसको भी आप कभी देखिएगा, इसका बिजनेस प्लान, तो आपको उसमें और फर्दर क्लियर हो जाएगा। इसके मुताबिक जो कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान होता है उसमें पहले विजन होता है कि 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, इस साल क्या अचीव करना चाहते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, फिर आपके क्या एक्शंस होंगे कि जिसको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, और आप उस स्केड्यूल को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये आपके स्ट्रेटेजी के अंदर शामिल होते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस प्लान गूगल पे जाके डाउनलोड करें और उसको पूरे को एक दफा एंजॉय करने के लिए पढ़ ले, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएंगी। A strategic business plan brings all levels of the business into the big picture. Inspire employees to work together, उसमें भी उसको हेल्प करेगा, तो आपको बिजनेस प्लान से पता चल जाएगा। उसके बाद है तीसरा जो है वो, मतलब ये टाइप्स बिजनेस प्लान की हम बात कर रहे हैं ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्लान, टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स। ओके, अगला है बिजनेस फिजिबिलिटी प्लान। बिजनेस फिजिबिलिटी या फिजिबिलिटी बिजनेस प्लान आंसर्स टू प्राइमरी क्वेश्चंस। ये बेसिकली दो चीजों के लिए होता है, तो जो कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सिटी इसमें जो है वो बताता है कि
आप डिटरमिन करते हैं कि इफ एनीवन विल परचेज अ सर्विस और प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी वांट्स टू सेल इट, इफ यू वेंचर कैन टर्न इनटू, क्या ये वाला काम करके हम प्रॉफिट में जा सकते हैं? क्या ये प्राइस रख के हमें कंपनी प्रॉफिट देगी या लॉस में जाएगी? अगर आप समझते हैं, जिसको मैं एक जुमला बार 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 बोलता आया हूं कि क्या देखें वो बिजनेस डूएबल है यानी फिजिबल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो वायबल है, क्या वो इकोनॉमिक, ये मैंने सारे कितनी दफा ही बोले हैं, ये है उसका मतलब कि क्या ये काम हो सकता है, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी प्लान। फिजिबिलिटी, हाँ जी हो सकता है। अगर आपके 500 कस्टमर आपको मिल जाएं, ये वाला प्राइस हम सेट करें, ये वाली प्रोडक्ट ऑफर करें, तो इससे हम 6 महीनों में अपना ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं। तो ये डूएबल है और ये प्रॉफिटेबल है और ये मैनेजेबल है। अब फिजिबिलिटी एंड्स विद द रिकमेंडेशंस, और इसमें फिर वो रिकमेंडेशन सारी मौजूद होती हैं इस प्लान के अंदर। अनदर वन इज ऑपरेशंस बिजनेस प्लान या ऑपरेशनल बिजनेस प्लान। अब ऑपरेशन के बारे में भी आपका प्लान होगा। जो ऑपरेशनल बिजनेस प्लान है वो बेसिकली इंटरनल प्लान होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ किस क्या चीज, ऑपरेशंस, सेल्स कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वो सारा आपने स्टेप बाय स्टेप लिख लिया होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेनिंग कंपनी की एग्जांपल आपसे शेयर करूं, तो उसमें कितनी क्लासें होंगी, कौन डिलीवर करेगा, कौन असेस करेगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा। अगर ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल कहाँ से कौन लेगा, उसको फिर कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलीज किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिनिश गुड्स आएगी। तो वो पूरा ऑपरेशन के बारे में, यानी कि जिस भी बिजनेस के लिए आपने प्लान बनाया है उसके ऑपरेशन का भी आप प्लान बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान। अनदर वन इज अ ग्रोथ बिजनेस प्लान, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्लाइड रिपीट हुई है। ग्रोथ प्लान भी आप बनाते हैं कि वो आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्पसेस के लिए हो सकता है, जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी कि आप अपनी कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, और वो अपने जो आपके करंट या फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरीके से आपने सेटिस्फाई करना है। लेकिन इसमें आपने बताना क्या होता है, फाइनेंशियल सेल्स या एक्सपेंस प्रोजेक्शंस के जी अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ग्रो करेंगे, हो सकता है अगर आप इतना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दें। अभी आगे जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान में आपने मेजर क्या चीजें लिखनी है, तो मेजर चीजों में हमारे पास जो है वो लिखने के लिए वो ये है कि ये तो एग्जिस्टिंग के लिए भी हो सकता है और स्टार्टअप के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये स्टार्टअप के लिए नहीं, एग्जिस्टिंग के लिए है। अच्छा, ऑफ दोज हु क्रिएटेड प्लान 64% ग्रीव देयर बिजनेस, यानी कि बिजनेस प्लान बना के अगर जाएंगे तो 64% चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे, कंपेयर टू 43% ऑफ द कंपनीज जिनके पास कोई फिनिश्ड बिजनेस प्लान नहीं था। तो इसलिए इसको बनाएं, ये ज्यादा जरूरी है। जो क्रिएट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट वालों को, कैपिटल देने वालों को भी कन्विंस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, देन सेल्स की स्ट्रेटजीज, फिर उसके बाद फंड रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। तो बिजनेस प्लान में ये 7 चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। यू गॉट व्हाट आई मीन? बिजनेस प्लान के 7 कंपोनेंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं जी होगी, लेकिन आप कर लेंगे आई बिलीव। सो दैट वाज योर योर यूनिट नंबर 4। क्लियर?